Welcome to Mind Faces, the only college community. Subscribe, like, and hit the bell icon. So, this is the economics session. Please make sure to check it out. It is going to be very informative and share with everyone. Thank you. Let's start. ये chapters देखें यहाँ पे. You can skip these things. Supply में you have to do the law of supply because that is a short question that can come either law of supply या फिर either law of demand. DMU नहीं आएगा ये बार because it was asked in 2025. Okay. Right. So supply analysis, you can leave other things in this chapter. Just do the objectives and law of supply. Then either national income or public finance. देखो national income skip मत करना, public finance कर दो, कोई problem नहीं है. I hope that is clear. Then मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दो पार्ट्स होता है, उसमें से कैपिटल मार्केट वाला पार्ट आप उड़ा सकते हो, ठीक है. एंड फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, डोंट डू. ओके, गॉट इट. इसके बाद आई हैव गिवन द बाइफर्केशन कि कौन से लिए क्या क्या आएगा, ठीक है. I'll come to everything step by step, so please focus on it. Try and explain the concepts. कितने मार्क्स का होता है ये? 4 3 कितने मार्क्स का होता है? 2 marks. 3 marks, 4 marks. 4. अरे Four per marks. question I'm asking. Per question. Per question 2 marks. 2 marks. Per question 2 Per marks. question 2 marks each, right? हाँ वही I wanted to understand, right? So identify का आपको 1 मार्क मिलता है और explain the concept का आपको 1 मार्क मिलता है, ठीक है. आपको कुछ भी ऐसे random statement दे देंगे and they will ask you कि क्या concept है, okay. So maybe it is like diminishing marginal utility. When I'm saying, for an example, that a curve is being, is stepping downward from left to right. What is the concept? Law of demand. Law of demand. Not Demand. demand, not demand. Demand It will curve be slopes. Law of demand. Demand curve Yes, so, slopes yeah, downwards. right. So it will be law of demand. Okay, you have to write पूरा. You can't just write demand. You have to write पूरा. ठीक है. और उसको फिर explain कर दो कि क्या होता है law of demand. But उसके लिए you will first explain what is demand. उसके बाद आता है distinguish between. Okay. देखो, yeah, listen, distinguish between everyone. ये 3 चैप्टर में से श्योरली आएगा. डिमांड या फिर इलास्टिसिटी 3A 3B, नेशनल इनकम एंड इंडेक्स नंबर्स, इसमें से डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर श्योर आएगा. देन यू हैव क्वेश्चन 3 दैट इज आंसर द फॉलोइंग. इसमें भी कितने मार्क्स का होता है आंसर द फॉलोइंग? 3 मार्क्स ईच होता है. 4 marks. 4 Four मार्क्स ईच होता है. 4 marks. 12, yes, 12 मार्क्स का टोटल होता है, राइट. एनीथिंग आउट ऑफ 5. तो उसमें भी एक क्वेश्चन नेशनल इनकम का आएगा, एक क्वेश्चन डिमांड इलास्टिसिटी से आएगा और एक क्वेश्चन आएगा आपका माइक्रो मैक्रो में से, ठीक है. आप अगर देख रहे हो द पैटर्न, नेशनल एंड डिमांड इज वेरी वेरी रेपिटेटिव, रिकरिंग, ओके, इन ऑल द क्वेश्चंस. तो ये चैप्टर्स तो आप छोड़ो ही मत. नेशनल इनकम मत छोड़ो, पब्लिक फाइनेंस आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. अंडरस्टूड. तो आई थिंक आंसर द फॉलोइंग के भी हमने नीचे दिए हुए हैं क्वेश्चंस. फिर आपका आता है अग्री डिसअग्री का. अब वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस बाद में. फर्स्ट जस्ट अंडरस्टैंड द पैटर्न. गिव रीजंस वेदर यू अग्री और डिसअग्री. इसमें क्या करना होता है? पीपल मेक अ ह्यूज मिस्टेक. आई गेस दिस इज आल्सो फॉर 4 मार्क्स ईच. Yes. अग्री डिसअग्री में आपने देखा होगा प्रीलिम्स में भी, यू माइट एंड अप गेटिंग 2.5 or 3. So, did you guys understand how you write agree disagree? Is there is a statement that you write, ठीक है. पहले तो you need to understand the number of points. मैं distinguish between पे भी आऊँगा, I'll come, okay. You need to first write एक statement. आपको पूरा statement लिखना पड़ेगा नीचे, ठीक है. आपको पूरा statement copy paste करना पड़ेगा. Let's say there are no exceptions to the law of demand, okay. You know that there are. तो आप पूरा उसको वो लिखोगे statement वहाँ पे. Then आप arrow करके लिखोगे नो कॉमा आई डिसअग्री विद दिस स्टेटमेंट. पूरा नो आप ऐसे नहीं लिख सकते, यस नो या फिर आई अग्री आई डिसअग्री, वैसे नहीं लिख सकते, ओके. इन बोथ यू हैव टू फॉलो पैटर्न. नो आई डिसअग्री विद द स्टेटमेंट या फिर यस कॉमा आई अग्री विद द स्टेटमेंट. देन यू विल राइट अ बेसिक ऑफ इट कि व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड लिखो. उसके बाद आप अग्री डिसअग्री के पॉइंट्स फॉर्म में लिखोगे, ठीक है. अंडरस्टूड. 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स मैंने अपनी लास्ट क्लास में ही बोला था. यू विल बी राइटिंग द आंसर in a dual manner. Points come paragraphs. Understood? Not just points, not just paragraphs, but points come paragraphs. For an example, if there is a question, okay, that is, I'll just share my screen and show you. 1 minute. Huh? Wait. Can you guys see the Word document, everyone? Yes.
देयर आर नो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये मेरा क्वेश्चन है, मैंने इसको ही कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, आई हैव कॉपी पेस्टेड दिस। उसके बाद आई होप यू गाइस कैन फॉलो, ओके। इसके बाद इसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज आंसर ऐसे करके, नो आई डू नॉट agree with, one second, I do not agree with this statement, okay, then reasons to justify, ऐसा आप लिखोगे, ठीक है, to justify, as we know, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, as we know law of demand states dash dash dash, जो भी लॉ है वो, ठीक है, then hence it can be proven that demand indicates any desire or will to buy, in bracket I'll send you this, don't worry, purchase or pay for the product। अब किसके लिए पे करते हो, you and me? No, you pay for the product or services, commodities, product or services slash commodities नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, you can add product, no problem, it's okay, commodity already I've mentioned in the law of demand, okay। आपको ऐसे लिखना है, दिस इज द ट्रिक टू राइट द एंटायर थिंग, क्योंकि दिस इज अग्री डिसएग्री का एक पार्ट। उसके बाद ओके, these are the factors that determine the exceptions to the law of demand। Did you understand हमने कैसे चालू किया आंसर को, everyone? Yes. 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 Boys, did you understand? Yes, Yes, तो आप चालू ऐसे करोगे, no I do not, so there are no exceptions in the law of demand, no I do not agree with this statement because there are, to justify, as we know law of demand states, okay, so law of demand states जो भी आपने बोला वो, उसके बाद hence it can be proven that demand indicates any desire or will to buy, purchase or pay for the product or services, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे there are these factors that determine the exception to the law of demand। first कौन सा आता है, Difference Difference paradox. डिफरेंस paradox. पैराडॉक्स, वेरी गुड। आप ऑर्डर में लिखोगे ना तो उनको भी लगेगा कि नहीं ये बंदे या बंदी ने पूरी बुक खा ली है, यू नो, हमने बुक पूरी चाट ली है, वी हैव रियली कंज्यूम गल्प द एंटायर बुक। अभी अग्री डिसएग्री के बाद आई वांटेड टू गो टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वंस टू एक्सप्लेन यू हाउ टू राइट। अभी यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन है वेरी सिंपल, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब यू नो दैट यू डोंट हैव टू राइट इट इन अ किडिश फॉर्मेट, ओके, यू हैव टू राइट at least 4 points on both the sides. The fourth point can be an example. Is that clear? Okay, so आप लिखोगे microeconomics on the left hand side, macro on the right hand side. Then the first आपको middle point भी लिखना है. Do you know what I mean when I say middle point? Definition, then उसके बाद meaning, then point like feature, characteristic feature. These three are the prime points for any question possible. Okay, so the first main heading will be definition. फिर दोनों का definition लिखने का आपको, फिर second point आएगा आपका meaning और उसको ज़्यादा elaborate करके लिखने का, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आएगा दैट इज फीचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है, और फंक्शन फॉर एन एग्जांपल। अंडरस्टूड? अगर आपको एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड पूछा है, जहां तक बने डायग्राम वाला डिस्टिंग्विश बिटवीन अटेम्प्ट नहीं करने का, अंडरस्टूड, क्योंकि आपका डायग्राम में वो ज्यादा टाइम चला जाता है, यू हैव रेस्ट ऑफ द थिंग्स टू फोकस ऑन। इफ यू आर डूइंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, आपको वो डायग्राम बना के शो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू डू इट। yes or no, right everyone? So make sure that you are doing it, and ये सारे questions आप अच्छे से करो, ठीक है। 3 But points distinguished में we don't need to make diagram ना. किस में? नहीं नहीं नहीं, खाली Distinguished में. expansion नहीं, खाली expansion contraction and increase and decrease in demand या supply whatever, उसमें you need to draw a diagram, otherwise कोई दूसरे में आपको diagram की जरूरत नहीं है, ठीक है। Also 1 second, एक मिनट, बहुत ज़्यादा अंदर से आप जेस्टी फील कर रहे हो पूछने के लिए, रुको थोड़ा, मैं आपको पूछता हूँ, डोंट वरी, ओके। सो you need to write at least 3 points each for both the sides, okay?
of course. And fourth point will be an example. Make sure to put an example over there. Even if you're not writing what is in the textbook, it is fine. खुद का बना के लिख दो, but it should make sense. ठीक है? Okay? It's not important to mention point of difference. मैंने क्या अभी बोला ओम ठाकुर? मैंने अभी बोला कि it is important. It is very much important for you to write the point of difference for all of the things. ठीक है? तो ये भी क्लियर हो गया. अभी इसके बाद आपका आता है आंसर द फॉलोइंग. आई गेस आई टोल्ड अग्री डिसएग्री. आई टोल्ड अग्री डिसएग्री में एक तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट से आएगा, एक सप्लाई से आएगा. ओके, और बाकी के जो भी आपने चैप्टर्स किए उसमें से आएगा. ठीक है, अगर आपने सप्लाई नहीं पढ़ा है नो प्रॉब्लम, एक फॉर्म्स ऑफ मार्केट में से तो जरूर आएगा, बाकी के दो के लिए आपने जो भी चैप्टर्स किए उसमें से आएगा. ठीक है, और जो टेबल है, टेबल में इंडेक्स नंबर्स इज प्राइम, फिर एक कॉम्प्रिहेंशन आता है आपको, वो तो आपको पैसेज में से ही देख के लिखना पड़ता है. एंड आंसर इन लॉन्ग आंसर्स के लिए ओनली 10 क्वेश्चंस, दीज 10 क्वेश्चंस. लॉ एक है, बाकी के लिए भी इसमें से ही करो और कुछ मत करो. ओके, या तो थियोरेटिकल प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ सकता है, या तो फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, या तो एक मार्केट के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है. दैट्स ऑल. ठीक है सर, ये वेरिएशन एंड चेंजेस इन डिमांड विद डायग्राम है, तो डिटेल में वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. हाँ, इसके लिए यू हैव टू. बट अगर मान लो कि इसमें से ही बाकी के में से ही दो और क्वेश्चंस आ जाए, ओके, सो यू विल बी एबल टू लीव दिस क्वेश्चन. ओके, ठीक है. Hi guys, hope this session was informative. Please join our Insiders program. The link is attached in the description. Thank you and share this video ahead. Insiders program will be very helpful as thousands of students have joined it.